Hello and welcome to Ecolics. In this very important video about economics option for UPSC, we will discuss 5 common mistakes that people make and then they regret after giving the examination. Now, you know, as an UPSC aspirant, it's very challenging to clear the preliminary stage. And when you reach to the mains examination, whenever you are writing mains examination with economics option, then you realize that if I would have done something else, my marks would be 25 to 50 marks better. So in this video, we will discuss about what are the common mistakes that you can avoid so that you can see the increment in your marks. It's very clear strategy. These mistakes have been identified by last 10 years topper, and then they regret that in the first attempt, if they have prepared according to these things, they would have cleared in the one lesser attempt. So इस वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Now I know that economics optional subject बहुत ही important है. In this economics optional subject you have two paper 1 and paper 2. As the name suggests, paper 1 focus on more towards theoretical subjects like microeconomics, macroeconomics. These are not very dynamic, but paper 2 is related to economics only. That is mainly Indian economy before independence, post independence, and we can say pre-reform era and post-reform era, that is 1991. So these are the two dividing lines of paper 2. Now the mistakes are common in both these papers. So we are not going to discuss paper 1 and paper 2 here because I have discussed already in other 5 or 6 videos. So you can check those videos in the playlist section. But here what is important is to understand what kind of a mistake that we do. Okay. In order to avoid these mistakes, in order to get a great strategy, I have compiled a PDF for you, those who are preparing for economics option. The link is given in the description and it is a password protected, and in this video you'll find somewhere the password of that. Okay, so make sure that you watch this video till end. Now number 1 is neglecting the syllabus. This is a common mistake people make because when they start studying, what they do is they like each and every topic. When you open newspaper, you'll find some interesting news. If you see Indian economy, there's a lot of content available, like in the form of magazine, materials, books, newspaper. There's several things. Plus the Google, the whole internet is available. So here the most important thing is we should not lose the sight of our target. Now आपको पता है एक डार्ट बोर्ड आपने देखा होगा. There's a circle और आपके हाथ में arrows होते हैं. You hit those. But what happened with the student, those who are preparing for such a long duration, because it's a challenging examination, so you need to have a lot of patience. What they do is they forget that goal. That board is not visible to them and they are firing arrows everywhere. So यहाँ पर हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि syllabus is our key. Syllabus will show us the path. कहाँ हमें जाना है, कुछ रास्ते जाना है जिससे कि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें, वो हमको सिलेबस बताता है. तो निगलेक्ट नहीं करना है सिलेबस को. इसका क्या मतलब है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सिलेबस इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं होती. जो चीज़ सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है, जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसे हमें नहीं पढ़ना है, चाहे वो कितना इंटरेस्टिंग हो, कितना इंपॉर्टेंट लग रहा हो. अब इंपॉर्टेंट तो वही है जो सिलेबस में है, तो वो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती नहीं. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, whenever they are dealing with syllabus, what they do is they see only topics. सिर्फ टॉपिक्स देखते हैं, पर टॉपिक्स नहीं देखना है. इफ यू सी द सिलेबस एनी ऑप्शनल पेपर, हिस्ट्री ऑप्शनल का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत लंबा है, वहीं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का देखेंगे तो छोटा सा है. इसका क्या मतलब है कि यूपीएससी भेदभाव कर रहा है ऑप्शनल में? द आंसर इज नो. यूपीएससी डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ऑप्शनल्स और अमंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज whenever you see topics, you have to see कि ये टॉपिक है या थीम है. जनरली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि ये टॉपिक है या थीम है. अगर ये थीम है तो उसके सब टॉपिक्स बनेंगे. तो जैसे ही आपको कोई टॉपिक मिले उसके आप सब टॉपिक्स बनाओ, और वो सब टॉपिक्स बनाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि जो टॉपिक लिखा था सिलेबस में, जो कि आप टॉपिक समझ रहे थे, पर वो थीम थी, वो थीम के अंदर कितने डाइवर्सिफिकेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जीएस पेपर 1 में देखें तो उसमें लिखा है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. अभी कोई टॉपिक थोड़ी ना है, इसमें 500-800 पेजेस की किताबें लिखी गई हैं कई ऑथर द्वारा, तो हम इसको एक टॉपिक तो ले नहीं सकते. ये एक थीम है, उसके अंदर कितने फीचर्स हैं वो आपको बनाना होगा. जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शन में पेपर 1 में लिखा है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स.
Marshallian, Wallerician, Keynes, classical, everything they have written in one line. It doesn't mean that that's a topic. तो आपको इसके सब टॉपिक्स बनाने हैं. अब सिलेबस और कहाँ निगलेक्ट होता है इसमें? एक स्टूडेंट को जो मैं लाइव क्लासेस में बताता हूँ, जब हम उनको क्लासेस में पढ़ाते हैं, तब मैं उनको मेंटरशिप सेशन या आंसर राइटिंग जो लाइव सेशन हम कंडक्ट कराते हैं, उसमें मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ कि आप हर वीक सिलेबस को देखें ज़रूर. हर वीक सिलेबस को देखने का मतलब क्या है कि हम जब भी पढ़ाई करें हमारा वो कोर्स करेक्शन की तरह वर्क करता है. इफ यू सी सिलेबस एवरी संडे तो आप पूरे टाइम ऑन ट्रैक रहेंगे. तो ठीक है, इट्स अ प्रॉमिस. राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर गिविंग मी प्रॉमिस ऑफ दिस थिंग कि हर संडे आप सिलेबस को रीड करेंगे और फिर उसके बाद अपनी मंडे से सैटरडे तक की पढ़ाई शुरू करेंगे. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, निग्लेक्टिंग द सिलेबस. सेकेंड पॉइंट है ओवर रिलायंस ऑन मटेरियल. अब स्टूडेंट्स को क्या होता है, जैसे इकोहॉलिक्स भी आपको बुकलेट देता है मटेरियल, पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट, जिसमें अच्छे से पूरा डिटेल चीजें दी हुई हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंटेंट भी लिखा है, डेटा भी है, सारी चीजें हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी हम सब देते हैं. बट स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सिर्फ मटेरियल पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ना. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर रिलायंस. दिस इज सेकंड मिथ. ओवर रिलायंस मतलब हम पूरा उसी पे ही भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं. नहीं, वो एक पार्ट है आपकी तैयारी का, उसके अलावा भी और भी पार्ट है. तो सिर्फ मटेरियल के अलावा नहीं, क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है. मतलब कोई भी गाइडेंस, जरूरी नहीं है आप क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, बट सिर्फ एक ही मटेरियल पे अगर आपका ओवर रिलायंस है तो ये डायनामिक सब्जेक्ट है. और थिंग्स आर बिकमिंग डायनामिक एज इंटरनेट इंट्रोड्यूस्ड अराउंड वी कैन से 2008 2009 और फिर 2016 में अगेन जब जियो ने फ्री प्लान स्टार्ट किए थे, इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है. उसके बाद से जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन का लेवल है वो काफी इनहांस हो गया है, क्योंकि अब हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में है. मतलब क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, बट क्या शॉर्टेज है? हमारे टाइम की, हमारे फोकस की, हमारे इंटरेस्ट की. तो इंफॉर्मेशन तो बहुत जगह, एक टॉपिक लिखो हजारों लिंक आ जाती हैं, बट पर्पस क्या है उन सब चीजों का? पर्पस ये है कि जब भी हम पढ़ें वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो, और जो अगर रिलेटेड है तो ही हम पढ़ें, नहीं तो ना पढ़ें उसको. तो ओवर रिलायंस का मतलब है कि सिर्फ मटेरियल पे फोकस करना, उसी को बार बार पढ़ना और बाकी चीजों को निगलेक्ट करना, जो कि हम अगले कॉमन मिथ में देखेंगे. लैक ऑफ प्रैक्टिस. अब पहले 2 पॉइंट यहां से कनेक्ट होते हैं. पहले 2 पॉइंट कैसे कनेक्ट होते हैं? जैसे आपने सिलेबस देख लिया, मतलब आपके पास डायरेक्शन है. आपके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन होने के बाद आपके पास रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, क्लासेस, मेंटर्स, टेस्ट एक्सेट्रा. अब होता क्या है, ये दोनों चीज बच्चे इकट्ठा करके रख लेते हैं. जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं, आपको लगता है कि बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, सब चीज जो मिली वो इकट्ठी कर ली, बट उसको देख के ना फिर टेंशन आती है, क्या इतना सारा पढ़ना है, टाइम इतना है, कैसे कैलकुलेट करें. इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार टेक्निक बता रखी है, दूसरे ऑप्शनल की वीडियो में आपको मिल जाएगी, बट यहाँ मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ. टेक्निक सिंपल है. जैसे क्रिकेट में होता है, एक करंट रन रेट से बैटिंग टीम बैटिंग करती है और एक टारगेट होता है सेकंड इनिंग्स में, और आपको रिक्वायर्ड रन रेट वो बताया जाता है कि आपका करंट रन रेट इतना है और रिक्वायर्ड रन रेट इतना है. वैसे ही सेम सेंस में आप अपनी करंट कैपेसिटी को जज करें कि मैं इतने पेजेस पर डे पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, इतने टेस्ट में लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, इतनी क्लासेस में अटेंड कर सकता हूँ. उसके हिसाब से यू प्लान कि अगर इसी स्पीड से चला तो मैं कहाँ तक कितने टाइम में पहुंचूंगा. सिंपल. अब लैक ऑफ प्रैक्टिस में क्या होता है? पीपल रीड, पीपल मेक नोट्स, पीपल रीड न्यूज़पेपर, दे रिवाइज, बट दे डू नॉट प्रैक्टिस. अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो एग्जामिनेशन है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, ये एग्जामिनेशन पेन पेपर पे होता है. यहां पर कितना हो डजंट मैटर. अगर पेन पेपर पे वो चीज नहीं आ पा रही है तो फिर ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है पूरी एक्सरसाइज करने का. इट्स अ फुल वेस्ट ऑफ टाइम. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एक को लाइव आंसर राइटिंग में मजबूर करता हूं कि आप लिखो. तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप सारे आंसर्स लिखो. जितना लिखोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे, पढ़ने से चांसेस नहीं बढ़ेंगे. पढ़ना तो इसलिए ताकि लिखने के लिए कंटेंट मिले, पर ज्यादा पढ़ोगे और लिखोगे कम तो मुश्किल है. तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हमको पढ़े लिखे लोग चाहिए, ना कि पढ़े पढ़े. तो अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आप सिर्फ पढ़े पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है कॉमन मिथ्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं,
मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रटने की जरूरत ही नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन है वो तो वैसी की वैसी रहेगी। जैसे इंडिया 1947 में आजाद हुआ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि वाई ओनली 1947, 46 में भी हो सकता था, 48 में भी हो सकता था। तो ये इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो 21वें नंबर पे ही क्यों है, वो 22 पे क्यों नहीं है? भाई वो लिस्ट बन रही थी, उनके नंबर्स थे। अगर सिटीजनशिप या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वाले आर्टिकल्स में एक आध ज्यादा आर्टिकल या क्लॉज होते तो वो 21 से शिफ्ट होके दूसरे नंबर पे आ जाता। तो इन चीजों का कोई लॉजिक नहीं होता। तो इसका मतलब मेमोराइजेशन तो हमें करना है, बट मेमोराइजेशन को प्रायोरिटी नहीं देना है। अब हम सारी चीज रट के लिख के आते हैं। सिंपल है, इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी समझदारी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चों को जीएस में भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, मेमोराइजेशन पे बहुत कम होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तो 2 टाइप के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही 2 टाइप के इसमें भी आते हैं मेंस में। एक में आपकी अंडरस्टैंडिंग लगती है, एक में फैक्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग लगती है। तो मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, वो आपको करना ही है, बट प्रायोरिटी अंडरस्टैंडिंग को देना है। ठीक है, सो प्रायोरिटी हम अंडरस्टैंडिंग को देंगे। अब कैसे देंगे, एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडियन इकोनॉमी में। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है। अब वो प्राइसेस की बढ़ने पे आरबीआई क्या एक्शन लेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। अब लोग इसको रटते हैं, समझो ना आप बात को, कि अभी सब चीज की प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि चीप मनी अवेलेबल है, पैसा आसानी से अवेलेबल है, जो चीजें हम खरीदना चाह रहे हैं वो नहीं अवेलेबल है। इसलिए जो भी डिमांड जनरेट हो रही है वो एक्सेसिव कैश फ्लो के चक्कर में हो रही है, सबके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो क्या करना होगा, आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। मतलब जो क्रेडिट है जिससे आदमी को पैसे मिल रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब मनी बोरो करने का महंगा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मनी महंगा हो गया। हाउस लोन 7% से 10% हो गया तो सारे घर की कॉस्ट बढ़ गई ना। फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से और क्या इंपैक्ट होगा, तो जो लोग लोन ले रहे हैं वो डिस्करेज होंगे। अब इसमें कोई रटने की तो बात नहीं है, क्यों, लोन 7% पे मिल रहा था अब 10% में मिल रहा है, तो जो बोलेंगे हम भाई 3% एक्स्ट्रा नहीं दे सकते वो लोग लोन नहीं लेंगे। तो मार्केट में क्रेडिट की डिमांड डाउन हो जाएगी। जब क्रेडिट की डिमांड डाउन हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, तो अगेन जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उसको धीरे धीरे आरबीआई कंट्रोल कर सकेगा। अब इसमें कोई मेमोराइजेशन की तो जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको लगातार सुनने में मिलेगी। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप मेमोराइजेशन पे ध्यान ना देके अंडरस्टैंडिंग पे दो। एक स्टैटिक एग्जांपल समझते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम मर्केंटिलिज्म टू एडम स्मिथ एंड देन यू नो के हेबरलर, रिकार्डो हेबरलर, और फिर उसके बाद एक्शर रोलिन, मॉडर्न थॉट्स आ जाते हैं। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरी में एडम स्मिथ के पहले मर्केंटिलिज्म थे। मर्केंटिलिज्म में लोग क्या कहते थे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और इंपोर्ट को कट डाउन करो। इसका क्या मतलब है, एक्सपोर्ट होगा तो कमाई बढ़ेगी और इंपोर्ट कट डाउन होंगे तो हमारे जो खर्चे हैं वो कम होंगे। इस तरह से कंट्री के पास वेल्थ बनेगी। क्योंकि पहले गोल्ड में ट्रेड होता था, सिल्वर में ट्रेड होता था या बुलियंस में होता था, प्रेशियस मेटल्स, तो वो लिमिटेड होते थे, इसलिए वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना। बट एडम स्मिथ आया, एडम स्मिथ ने कहा कि नहीं, फ्री ट्रेड होगा तो दोनों की ग्रोथ होगी। पर एडम स्मिथ ने कहा कि एक कंट्री किसी में स्पेशलाइज है, दूसरी किसी में है, वो आपस में एक्सचेंज करेंगे तो दोनों की ग्रोथ होगी। फिर रिकार्डो कहते हैं कि नहीं, एक अगर दोनों कंट्री एक एक चीज में एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी ट्रेड हो सकता है। फिर हेबरलर ने कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ट्रेड होता है, कि कोई चीज दोनों चीज में बना सकता हूं पर एक चीज में किसी सस्ते में बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी। सो इंडिया में सॉफ्टवेयर अच्छे से बल्क में बनते हैं, चाइना में हार्डवेयर बनते हैं। तो ये हेबरलर ने। हेक्सर का नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज फैक्टर एंडाउमेंट है, उसके बेसिस पे ट्रेड होता है। जैसे मिडिल ईस्ट में ऑयल ही ऑयल है, तो वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल सेल करते हैं, और बाकी सारी चीजें ओसी जो ऑयल से पैसा कमाए उससे करते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इस तरह इकोनॉमिक्स को समझोगे तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पे जाते हैं, फिफ्थ वन, नॉट सीकिंग फीडबैक। अब स्टूडेंट क्या होता है
कि स्टूडेंट आंसर लिखता है, स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट सारी चीज़ें सही कर रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि ये रास्ता मेरे को यूपीएससी के सिलेक्शन तक ले जाएगा कि नहीं। इसके लिए आपको लगातार फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है। जो आप आंसर्स लिख रहे हैं वो इवैल्यूएशन आपको मिलना चाहिए, उस पर फीडबैक मिलना चाहिए। उसके मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका फीडबैक है। आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन किस तरह से समझ रहे हैं। अगर वहाँ लिखा है डायरेक्टिव्स में लिखा है वहाँ नरेट, और आप लिख के आ रहे हैं उसको डिस्कस के हिसाब से, या क्रिटिकली एनालाइज पूछा है और आप इलस्ट्रेट वे में लिख रहे हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सीकिंग फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। मे बी आप आंसर सारा सही लिख रहे हो, बट जो पूछा जा रहा है जिस स्टाइल में, उस स्टाइल में नहीं लिख रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बुलेट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, बुलेट्स वर्सेस पैराग्राफ, कैसे आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमको ऐसा नहीं सोचना कि हमें सब आ गया है, हमको ईगो पे नहीं रहना, नहीं मेरा तो आंसर सारे सही होते हैं, मेरे तो अच्छे होते हैं। फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फीडबैक नहीं लेंगे तो आपकी तैयारी जो 1-2 साल में हो जानी चाहिए, प्रिपरेशन प्लस एग्जाम ईयर, वो 4 या 5 साल खिंचती है। 4 या 5 साल खींचने में अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट प्रॉब्लम 4-5 साल खींचने में क्या होता है ना, मोटिवेशन डाउन होता है, कॉन्फिडेंस गिरता है। एग्जाम हमको क्लियर करना है, जितना जल्दी आप एंटर करोगे सर्विसेज में उतना ही आपकी सीनियरिटी भी बनती है। तो ये सारी चीज़ों से जब हम तैयारी करें तो हम फास्ट चीज़ों को ले जाने की कोशिश करें, और हम पूरा ट्राई करें कि जो भी हम हमारी तरफ से एफर्ट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं काउंट हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट in life or in this exam, everything counts. If you're writing answer, taking feedback, improving again, then again writing, you can see the difference in 6 weeks. What we do at Ecoholics is we provide detailed report of your progress from week 1 to week 2, week 3, week 4. When you see after writing 8 weeks of answer writing our weekly test, you realize कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, and that is where you improve, that is where you excel. और वो आप सिलेक्शन और अपने ड्रीम के करीब पहुंचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरा डिटेल्ड में वीडियो बनाया। मैं हर संडे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का एक सेशन लेता हूँ, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। उसमें आप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस कॉन्टेंट, एंड अदर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ मैंने डिटेल रिविजन स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, कैसे टेस्ट सीरीज को यूज करें, सारा चीज बनाया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट मोर कंटेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।